মাতাজি। আমরা আমাদের কালেকটিভ মেডিটেশন সেশন শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আমাদের অ্যাটেনশন বা চিত্ত সহস্রে রাখবো। এই অবস্থায় রেখে আমরা আমাদের হৃদয়ে শ্রীমাতাজিকে আহ্বান করব। ডান হাতটা হৃদয়ে থাকবে, বা হাত শ্রীমাতাজির দিকে রেখে আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি মা, পরম পূজ্যা শ্রীমাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার হৃদয়ে আসুন। হে আদিশক্তি মা, পরম পূজ্যা শ্রীমাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার হৃদয়ে আসুন। আপনার হৃদয়ের আলোকে আমার হৃদয়কে আলোকিত করে দিন মা। আপনার হৃদয়ের আলোকে আমার হৃদয়কে আলোকিত করে দিন মা। মা, আপনার কৃপায় জেনেছি আমি শুদ্ধ আত্মা। আমি দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার আমি কিছু নই। আমি শুদ্ধ আত্মা, আপনি পরমাত্মা। মা, আমি শুদ্ধ আত্মা, আপনি পরমাত্মা। এই ভাব রেখে আমরা নতমস্তকে শ্রীমাতাজিকে প্রণাম করব এবং কুণ্ডলী তুলে বন্ধন দেব। আমরা গানের সুরে 3 মহামন্ত্র করব। শ্রী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী মহাকালী ত্রিগুণাত্মিকা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। শ্রী কলিকি সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। সাক্ষাৎ শ্রী কলিকি সাক্ষাৎ শ্রী সহস্রা স্বামিনী মোক্ষ প্রদায়িনী মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ।
মন্ত্রের আকারে শ্রী গণেশ মন্ত্র। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন ব্যালেন্সিং করব। ডান হাত মাটিতে থাকবে, বাঁ হাত কোলে রাখবো, আর আমাদের অ্যাটেনশন বা চিত্ত থাকবে সহস্রারে। এই অবস্থায় আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদি শক্তি মা পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার ইরা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা আমার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে আমার ইরা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয়। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমার ইরা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার ইরা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয়। হে আদিশক্তি মা পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার ইরা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার ইরা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আমরা একবার শ্রী মহাকালী শ্রী ভৈরবনাথের মন্ত্র নেব। তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহাকালী সাক্ষাৎ শ্রী ভৈরবনাথ সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা ডান হাত কোলে নিয়ে আসবো, আর বাঁ হাত আমাদের আকাশের দিকে থাকবে। হাতের তালু শরীরের পিছন দিকে রেখে আমরা চিত্ত সহস্রে রেখে প্রার্থনা করব শ্রী মাতাজির কাছে, হে আদিশক্তি মা পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয়। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার ডান দিকের পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে আমি বর্তমানে থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি।
हे आदिशक्ति माँ श्री माता जी निर्मला देवी, आपने कृपा करे आमार पिंगला नारीर যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার পিঙ্গলা নাড়ী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি বর্তমানে থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আমরা একবার মহা সরস্বতী শ্রী হনুমানের মন্ত্র নেব। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহা সরস্বতী সাক্ষাৎ শ্রী হনুমান সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা এখন দুই হাত হৃদয় বরাবর রাখবো। এই অবস্থায় থেকে আমরা শ্রীমাতাজির কাছে প্রার্থনা করব আমাদের মধ্যপথ পরিষ্কার করার জন্য। হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রীমাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্না নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি। হে আদিশক্তি মা পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্না নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি। শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যপথ তথা সুষুম্না নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি, আমি মধ্যপথে থাকতে পারি। আমরা একবার শ্রী মহালক্ষ্মীর মন্ত্র নেব। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা দুই হাত খুলে নামিয়ে নিয়ে আসবো, একটু ধ্যানের অবস্থায় থাকবো। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনব। আমাদের চিত্ত সহস্রে থাকবে। আজকের প্রবচনের টাইটেল सहज योग में प्रेम की शक्ति। सहज योग में प्रेम की शक्ति এই প্রবচন দিল্লিতে শ্রী মাতাজি দিয়েছিলেন 1986 সালে 16 ফেব্রুয়ারি 16th February 1986 in দিল্লি। শ্রী মাতাজি এই প্রবচন দিয়েছেন। টাইটেল অফ দ্য প্রবচন সহজ যোগ মে প্রেম কি শক্তি। এটা এখন আমরা চিত্ত সহস্রে রেখে শুনব। दिल्ली वालों में जितना प्यार भरेगा उतना ही कल्याण का मार्ग बनने वाला है। प्रेम के प्रति उदासीन होने वाले लोग सहयोग में बढ़ नहीं सकते। हम दूसरों को कितना प्यार दे सकते हैं, इसकी
पूरी कल्पना अभी आपको नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर प्यार का सागर बसा हुआ है और उसकी झलक मात्र भी हमने अभी तक देखी नहीं कि हम कितने प्यार से ओतप्रोत हैं। परमात्मा ने भी हमें बनाया सो अपने प्यार में ही बनाया है, और जिस चैतन्य को आप जानते हैं और जिस ब्रह्म को आप महसूस करते हैं, ये ब्रह्म भी उनका प्यार ही है। प्यार ही सत्य है। जो मनुष्य किसी से प्यार करता है या स्त्री किसी बच्चे से प्यार करती है, पति से प्यार करती है, तो वो उसके बारे में सब कुछ जान जाती है, तो भी वो बाह्यता जानना हो जाता है। लेकिन आप जब चैतन्य से किसी को जानते हैं तो उसके बारे में आप सब कुछ एक साथ जान सकते हैं। इसको आपने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। आप खुद जानते हैं कि आप अपने उंगलियों पर इस चैतन्य को भी जान सकते हैं, अपने को भी जान सकते हैं और दूसरों को भी जान सकते हैं। लेकिन अभी तक ये हमारे अंदर आस्था नहीं आई कि ये चैतन्य प्यार परमात्मा का प्यार है। ये प्यार की शक्ति का अर्थ तो हम लोग हमेशा विध्वंस से लगाते हैं, किसी की घृणा से लगाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है वो जब हमारे अंदर उतरता है तो पूरी तरह से हमें शांतिमय बना देता है। इसको क्या अंग्रेजी में कहते हैं, रिलैक्स्ड। किसी भी तरह की हिंसक भावना हमारे अंदर आ ही नहीं सकती, किसी तरह का भी आतताई एग्रेसिवनेस आ ही नहीं सकती। और जब एग्रेशन अवतरणों ने किया भी तो वो इसलिए कि वो शांति के विरोधक थे, वो प्रेम के विरोधक थे, वो द्वेषपूर्ण थे, राक्षसी थे। आज संसार में सब दूर आसुरी विद्या फैल गई। कृष्ण ने बताया था कि आसुरी विद्या जब फैलती तो बहुत जोर में पकड़ लेती। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये सोचना चाहिए। आसुरी विद्या जल्दी फैलती है और सहयोग धीरे धीरे क्यों फैलता है। सोचना चाहिए कि जो इतनी अच्छी चीज है, जो सर्वोत्तम चीज है, वो धीरे धीरे फैलती है, और जो गंदी चीजें हैं वो इतनी जल्दी क्यों फैल जाती। इसकी वजह यह है कि जब मनुष्य की चेतना बढ़ती है तो वो उल्टी तरफ बढ़ती है। ऐसे भी श्री कृष्ण ने यह भी बात कही है कि अधोगति पर जाती है। ये पेड़ का जो मूल है वो आपके मस्तिष्क में है। तो इस ब्रेन की ओर जाने का क्या मार्ग है, ऊर्ध्वगति की ओर जाने का क्या मार्ग है। आप तो जानते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपका जो चित्त है वो ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। पर अगर आप ऊर्ध्वगति की ओर जा रहे हैं और बार बार आप अधोगति की ओर उतर आते हैं तो इस बंधन कुदी में आप कहां पहुंच पाइएगा। जैसे स्कूल में पढ़ा जाता है कि एक आदमी था, उसने 4 दिन काम किया, फिर वो भाग गया। फिर दूसरा एक आदमी आया, उसने 2 दिन उस काम को तोड़ा, फिर वो भाग गया। फिर उसके बाद तीसरा आदमी आया। तो ऐसी हालत में वो काम पूरा कैसे हो सकता है। आज बनाया कल तोड़ा, क्योंकि हम उस अधोगति से ऊपर उठ रहे हैं, उस जड़ता से हम ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए उधर खिंचाव ज्यादा हो जाता है और इसीलिए बहुत जोर लगा करके ऊपर उठना पड़ता है। हालांकि परमेश्वर की शक्ति आतुर है कि आपको कमल के जैसे
सुंदर ऊर्ध्वगति दान करे और उसने प्रदान किया भी है, लेकिन उस दशा में रहने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, और जोर बड़ा सुंदर है, वो है प्यार का। अब प्यार का विश्लेषण कैसा किया जाए? प्यार का मतलब ये होता है कि जहां आप कोई सा भी कार्य करते हैं वो अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। हित आत्मा का साध्य होना चाहिए। आत्मा का हित जो है वही प्यार है और वही आनंद है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में लोग किसी भी एक धारणा पे जुट जाते, यही बात ठीक है, ऐसी करना चाहिए, यही होना चाहिए, मैं यही ठीक समझता हूं, ऐसे ही करना चाहिए। इसे हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार माने मैं करता हूं। कितने बार आपसे मैंने बताया कि हम कुछ भी नहीं करते। कोई मरी हुई चीज को अगर हम दूसरी मरी हुई चीज बना दें तो हम क्या करते हैं? समझ लीजिए अगर एक पेड़ मर जाए और उससे हम एक फर्नीचर बना दें तो हमने क्या विशेष चीज कर ली? कुछ भी नहीं किया। एक मरी से दूसरी बना ली, और मरी हुई चीजों को इस्तेमाल करने से हम भी धीरे धीरे मरते हैं, माने हमारे भी अंदर आदतें जुट जाती हैं। जैसे कि हमें अगर आदत हो गई कि हम पलंग पे सो तो जमीन पे नहीं सो सकते, फिर पलंग उठाते फिरिए दुनिया भर में। अब हमारी क्योंकि जड़ता से ही प्रगति हुई है, जड़ की ओर आकर्षण एक तरह से बना हुआ है। उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, क्या हम अपने से प्यार करते हैं? क्या हम स्वयं को प्यार करते हैं? अगर हम स्वयं को प्यार करते हैं तो कितनी बातें उसमें आ जाती हैं कि क्या हम कोई सा भी कार्य करते वक्त अपना अपमान या उपमर्द तो नहीं करते? माने चिढ़ जाना, बिगड़ जाना, नाराज हो जाना, जिसके लिए फिर हम दुखी भी हो तो भी जिस वक्त हुआ सो तो उतर गई आपकी इज्जत। दूसरी बात, अगर हम अपने से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दूसरा देखने वाला कहे कि कोई संत खड़ा हुआ है। आप लोग सब संत हो गए, थोड़े अधकच्चे भी हैं, ये नहीं मैं कहती कि सब पक्के संत हो गए। अधकच्चे तो सही, पर हो तो गए आप संत। आप असंतों के जैसे तो घूम नहीं सकते। अगर आपका अब बर्ताव इस तरह से रहे कि जो एक संत नहीं करता, तो ये तो बहुत बड़ी अपनी हानि है। क्योंकि एक तो पहले आपको संत होना नहीं चाहिए था, नहीं होते तो लोग कहते चलो ये उच्चक्के ही है, चोर है, चलो इनके तो ऐसे ही है, घुमा करते हैं ऐसे 2500। गलियों में ऐसे बहुत से देखे गए। लेकिन आप संत तो उसकी एक अपनी हस्ती है जो कि माननीय होनी चाहिए, जिसको लोग माने। लेकिन माने कैसे अगर वो माननीय नहीं है? तो प्यार जब तक असलियत पे नहीं आता, जब तक असली प्यार नहीं होता है, तब तक झूठे प्यार से हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। अगर हम अपना प्यार इस तरह से तौले कि हमने अपने लिए क्या किया, हमने जमीनें खरीद ली, मकाने बना लिए, बाल बच्चे हमारे पढ़ गए, सब कुछ हो गया। अब हमने अपने लिए क्या,
स्वार्थ, स्व का अर्थ हमने लगा लिया क्या? अपने लिए हमने कौन सी सेवा की? माँ की सेवा तो बाद में होगी, पहले अपनी करो बेटे। अपनी सेवा में क्या प्राप्त होने का है, क्या हमारा लक्ष्य है, वो सोच लेना चाहिए। हमें क्या पाने का? हमें पूर्णतया परमात्मा के साम्राज्य में अधिकार से बैठना है। उस अधिकार को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हमने कौन सी गतिविधियां की, कौन सी व्यवस्था की है अपने जीवन के साथ, कौन से तौर तरीके अपनाए हैं, ये सोचना चाहिए। अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इसमें लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है? अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं, तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। अगर समझ लीजिए एक पेड़ आप लगाइए, वहां रोज भूकंप हो रहा हो, तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वही न तो पेड़ बढ़ेगा। जहां अशांति है, जहां हर चीज हिल रही है, डावाडोल है, वहां क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है, वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नजर नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाएं, तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई है। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना है कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधाराएं शुरू हुई, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं, मुझसे अलग चीज है, तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो जरूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहयोग बातचीत ही बातचीत रह जाएगी। जब तक हम अपने से ही प्यार नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से क्या प्यार करें? लेकिन प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने से प्यार करने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे हो जाएं, या हमारे पास 10-12 मोटर गाड़ी हो जाए और हम बड़े आराम से घूमते फिरते रहें। ये जो लोग पा भी लेते हैं, वो भी आप जानते हैं, माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ इसका कुछ इलाज करें, हम तो भर पाए, वो भी सुखी नहीं। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রীমাতাজি অমৃতবাণী শুনলাম। এখন চিত্ত সহস্রে রেখে আমরা আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম শ্রী গণেশ শতকোষীয় পাঠ করব। ডান হাত মাটিতে থাকবে,
বাঁ হাত কোলে রেখে শ্রী গণেশ অথবা শিষ্য আমরা পাঠ করব। ওম নমস্তে গণপতয়ে তমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি তমেব কেবলম কর্তাসি তমেব কেবলম ধর্তাসি তমেব কেবলম হর্তাসি তমেব সর্বং খলুদং ব্রহ্মাসি ত্বাং সাক্ষাৎ আত্মাসি নিত্যং একং বচমি সত্যং বচমি আভো ত্বাং মাং আভো ভক্তারং আভো শ্রোতারং আভো দাতারং আভো দাতারং আভো অনুচানং আভো শিষ্যাং আভো পশ্চাৎ আভো পুরস্তাৎ আভো উত্তরাৎ আভো দক্ষিণাৎ আভো চূর্ধাৎ আভো অধরাৎ সর্বতোমাং পাহি পাহি সমন্তাৎ ত্বাং বাংময়স্তাং চিন্ময়ঃ ত্বাং আনন্দময়স্তাং ব্রহ্মময়ঃ ত্বাং সচ্চিদানন্দ অদিতিভোষি ত্বাং প্রত্যক্ষাং ব্রহ্মাসি ত্বাং জ্ঞানময় বিজ্ঞানময়োসি সর্বং জগদিদং তত্ত্ব জায়তে সর্বং জগদিদং তত্ত্ব তিষ্ঠতি সর্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি সর্বং জগদিদং দেহি প্রত্যেতি ত্বাং ভূমিরাপোঃ অনলঃ অনিলঃ নভঃ ত্বাং চত্বারি ওয়াকপদানি ত্বাং গুণত্রয়াতীতঃ ত্বাং দেবত্রয়াতীতঃ ত্বাং কালত্রয়াতীতঃ ত্বাং মূলাধারো স্থিতোऽসি নিত্যং ত্বাং শক্তিত্রয়াত্মকঃ ত্বাং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যং ত্বাং ব্রহ্মা ত্বাং বিষ্ণু ত্বাং রুদ্র ত্বাং ইন্দ্র ত্বাং অগ্নি ত্বাং বায়ু ত্বাং সূর্যাস ত্বাং চন্দ্রমাস ত্বাং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ গণাদি পূর্বমুচার্য বর্ণাদি তদনন্তরম অনুসারো পরতরঃ অর্ধেন্দুলোচিতং তারেণ ঋদ্ধং এতত্তব মনুস্বরূপং বকারো পূর্বরূপং বকারো মধ্যমরূপং অনুসারা শান্তরূপং ইন্দুরুত্তরূপং নাদো সন্ধানা সংহিতা সন্ধি শৈশা গণেশ বিদ্যা গণক ঋষি নিশ্চিত গায়ত্রী ছন্দঃ গণপতি দেবতা ওম গং গণপতয়ে নমঃ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पार्श्वमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तविभानो मुषकोध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासुषं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं
ভক্তানুকম্পিনাং দেবা জগৎকারণমাচ্যুতম আবির্ভূতং চ সৃষ্টি আদৌ প্রকৃতে পুরুষাৎ পরম एवं ध्येति ओ नित्यं स योगी योगिनावरः नमो नाथपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मपतये नमस्ते वस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। আমরা প্রার্থনা করব আমাদের উত্থানের জন্য। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদেরকে উত্থান দিন। হে পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদেরকে উত্থান দিন। আমরা সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করব। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে সমস্ত রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সমস্ত রকম প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে কৃপা করে রক্ষা করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে এবং সমস্ত রকমের প্রকোপ থেকে আমাদের সমস্ত বিশ্ববাসীকে কৃপা করে রক্ষা করুন। জয় শ্রী মাতাজি। এখন আমরা ভজন করব। ভজন করে আমরা ধ্যানে যাব। প্রথম ভজন গজাননা শ্রী গণরায়া, নতুন বইয়ে 165 165, আর সেকেন্ড বই 184 184, থার্ড বই 192 192, নির্মলাঞ্জলি বড় নির্মলাঞ্জলি 72 72, ছোট নির্মলাঞ্জলি 101 101। গজাননা শ্রী গণরায়া। गणराया आदि बंधु तुझ मोरया, गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया, मंगल मूर्ति श्री गणराया आदि बंधु तुझे मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया, गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। সিন্দুর চর্চিত ধবলিয়াঙ্গ, সিন্দুর চর্চিত ধবলিয়াঙ্গ, চন্দন কুল বিরাঙ্গ, কুল বিরাঙ্গ, বধতা মানস হতে দাঙ্গ, হতে দাঙ্গ।
लाला चरणी तुझिया आदि बंधु तुझे मोरया गजानन श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया गजानन श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया गौरी तनया भालु चंद्र गौरी तनया भालु चंद्र देवाकृते तू समुद्र वरद विनायक करुणागारा गया आदि बंधु तुझे मोरया गजानन श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया गजानन श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया मंगल मूर्ति श्री गणराया आदि बंधु तुझे मोरया गजानन श्री गणराया आदि बंधु तुझे मोरया गजानन श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया गजानन श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। এবার আমরা গুরু শরণ এই ভজন নতুন বই 119 119 সেকেন্ড বই 139 139 থার্ড বই 136 136 আর নির্মাণাঞ্জলি বড় 75 ছোট নির্মাণাঞ্জলিতে নেই বড় নির্মাণাঞ্জলিতে 75 গুরু শরণ। गुरु शरण में रहियो माँ की शरण में रहियो गुरु शरण में रहियो माँ की शरण में रहियो हर पल निर्मल कहियो हर पल निर्मल कहियो हे मन गुरु शरण में रहियो हे मन माँ की शरण में रहियो गुरु हमारी आदि शक्ति गुरु हमारी आदि शक्ति कर ले मन इनकी भक्ति कर ले मन इनकी भक्ति इनके ही गुण गाइयो इनके ही गुण गाइयो गुरु शरण में रहियो हे मन माँ की शरण में रहियो गुरु हो तो है ज्ञान की पूंजी गुरु हो तो है ज्ञान की पूंजी मोक्षोद्धार की है ओ कुंजी मोक्षोद्धार की है ओ कुंजी चरणों पे फूल भइयो चरणों पे फूल भइयो हे मन गुरु शरण में रहियो हे मन
शरण में रहियो। गुरु हमारी प्रेम का सागर, गुरु हमारी प्रेम का सागर, भर ले बंदे अपनी गागर, भर ले बंदे अपनी गागर, आंगन ही में रहियो, आंगन ही में रहियो। हे मन गुरु शरण में रहियो, रहियो। हे मन माँ की शरण में रहियो। गुरु गो तो है नाथ अनाथा, गुरु गो तो है नाथ अनाथा, इन चरणों में रख दे माथा, इन चरणों में रख दे माथा, आशीष का पाइयो, आशीष का पाइयो। हे मन गुरु शरण में रहियो, रहियो। हे मन माँ की शरण में रहियो। कर दे कश्ती माँ के हवाले, कर दे कश्ती माँ के हवाले, सासु सासु माँ आप संभाले, सासु सासु माँ आप संभाले, इनके कृपा करियो, इनकी कृपा करियो। हे मन गुरु शरण में रहियो, रहियो। हे मन माँ की शरण में रहियो। कर ले विनती माँ निर्मल से, कर ले विनती माँ निर्मल से, काट कर बंधन सब जीवों के, काट के बंधन सब जीवों के, निर्मल का भर दइयो, निर्मल का भर दइयो। हे मन गुरु शरण में रहियो, रहियो। हे मन माँ की शरण में रहियो। हर पल निर्मल निर्मल कहियो, हर पल निर्मल निर्मल कहियो। हे मन गुरु शरण में रहियो, रहियो। हे मन माँ की शरण में रहियो, रहियो। हे मन माँ की शरण में रहियो। এখন যে ভজনটা করব ওঙ্কার স্বরূপা, ওঙ্কার স্বরূপা আগের দিন করেছিলাম সদ্গুরু সমর্থা। একটু আগে আমরা এই ভজনটা করলাম, তাতে আছে যে গুরু হতো হ্যায় নাথ অনাথা। এখানে মারাঠি ভাষায় বলছে যে অনাথাচ্চা নাথা, মানে অনাথের নাথ। এই ভজনে এবার আমরা এটাই আমরা পাবো যে তিনি অনাথার নাথ শ্রী গুরু। নির্মলাঞ্জলি 46 ছোট নির্মলাঞ্জলি 76 সেকেন্ড বই 177 177, থার্ড বই 185 185 এবং নতুন বই 158 158। এই ভজনের পরে আমরা ধ্যানের অবস্থায় চলে যাব। ওঙ্কার স্বরূপা, ওঙ্কার স্বরূপা, ওঙ্কার স্বরূপা, তুজা নমো, তুজা নমো, তুজা নমো। ओंकार स्वरूप
सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथा नाथा तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथा नाथा तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो नमो माया बापा गुरु कृपा धाना नमो माया बापा गुरु कृपा धाना तोड़िया बंधना माया महा तोड़िया बंधना माया मोहा मोह जाए माझे कोलू निरशिर तुझ बिन दयाळा सद्गुरु राया तुझे नमो 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 ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथा नाथा तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो सद्गुरु राया माझा आनंद सागर त्रैलोक्य आधार गुरु राव सद्गुरु राया माझा आनंद सागर त्रैलोक्य आधार गुरु राव त्रैलोक्य आधार गुरु राव त्रैलोक्य आधार गुरु राव स्वामी अशेष प्रकाश गुरु राम स्वामी अशेष प्रकाश जापुरे उदास चंद्र रवि जापुरे उदास चंद्र रवि जापुरे उदास चंद्र रवि रवि शशि अग्नि नैन तिजा रूपा रवि शशि अग्नि नैन तिजा रूपा स्वप्रकाश रूपा नैने स्वप्रकाश रूपा नैने वेद स्वप्रकाश रूपा नैने वेद तुझे नमो तुझे नमो स्वप्रकाश रूपा तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो एक जनार्दनी गुरु परब्रह्म एक जनार्दनी गुरु परब्रह्म तयाचे पैना सदामुखी तयाचे पैना सदामुखी तुझे नमो तुझे नमो तयाचे पैना सदामुखी तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथा नाथा तुझे नमो 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 तुझे नमो
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন শ্রী মাতাজিকে নতমস্তকে প্রণাম করে আরতির জন্য উঠে দাঁড়াবো। प्रभु को दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, माँ कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसी को, माँ सुख ही मिला उसी को। बैठ के दिलों में ओ माँ, बैठ के दिलों में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतार के कर दिया उजियारा, माँ कर दिया उजियारा। कलियुग में माया है, कलियुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ
तो जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। होए सके जो सेवा, होए सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको, माँ सबको कुंडलिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी
शक्ति भगवती माता जी श्री निर्मला देवी की जय। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা বন্ধন নেওয়ার আগে যেমন কাজ করি সেরকম কাজ করব। আমরা ওয়াল ম্যাপের উপরে ভাইব্রেশন দেব। মাটিতে ওয়াল ম্যাপ রেখে, যাদের ম্যাপ নেই তারা মাটিতে সার্কেল রেখে ওয়াল ম্যাপ লিখে নেবেন। ওই অবস্থায় আমরা ডান হাত মাটিতে রাখবো, ওয়াল ম্যাপের উপরে ভাইব্রেশন দেবো, আর বাঁ হাত আমাদের করে থাকবে। আর আমরা প্রার্থনা করবো শ্রী মাতাজির কাছে, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আর একবার বলবো, হে আদিশক্তি মা পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা কিছুক্ষণ ধ্যানের অবস্থায় দুই হাত তুলে নিয়ে থাকবো। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন শ্রী মাতাজিকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, ধন্যবাদ জানাবো যে মা আপনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় কোথায় বাধা রয়েছে। আমরা এখন এই বাধাগুলো সমস্ত কিছু বাধা শ্রী মাতাজি শ্রী চরণ কমলে সমর্পণ করে দেব। কোনো মা যে বাধাগুলো রয়েছে আপনি কৃপা করে সমস্ত বাধা দূর করে দিন, দিয়ে সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন, ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা মাকে প্রণাম করব, নতমস্তকে করে কুণ্ডলী তুলে বন্ধন দেব।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা আমাদের সেশন এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। সামনের দিন আবার আমরা মিট করব।